Hello everybody, welcome to CampTech Institute. Today we'll discuss as to how we can improve our spoken English. But उसके लिए आप सभी से request है that please watch the full video and try to implement all the suggestions given over here. Then I assure you that in coming weeks there'll be a lot of improvement as far as your spoken English is concerned. ठीक है? The first question that comes to our mind is how do we communicate with each other? हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? What are the mediums of communication? We talk either by speaking, reading, writing or listening. And we all know India is such a diverse country. We've got such wonderful languages in our own country. इतनी ज़्यादा languages हैं, like from South India to North India, East to West. Though, why do we require English? English is not our native language. It's a foreign language. But still, हमें English की ज़रूरत है. What are the reasons for that? So let us just try to know why exactly do we require English. पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंग्लिश जो एक ग्लोबल लैंग्वेज है. इट इज़ अ लैंग्वेज फॉर बिजनेस. इफ़ यू आर अ बिजनेस मैन, इफ यू वांट टू डू बिजनेस, तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इवन इन आवर ओन कंट्री और फॉर दैट मैटर आप बाहर कंट्री से बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, यू रिक्वायर इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. एंड लोग कहते हैं लाइक एंड वी ऑल से ऑफ कोर्स कि दुनिया विद एवरी पासिंग डे छोटी होती जा रही है. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अभी ट्रैवलिंग हमारे लिए दिन ब दिन विद एवरी पासिंग डे आसान होता जा रहा है. हम शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में दूर दूर ट्रैवल करते हैं. एंड आई थिंक आप लोगों में से भी देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ पीपल जो अब्रॉड होके आए होंगे, और आने वाले 5-10 साल में आई थिंक देयर विल बी हार्डली एनी पर्सन इन इंडिया जो अब्रॉड नहीं गया होगा. सो इन दैट केस व्हेन यू गो अब्रॉड, हाउ डू यू स्पीक? What is the language we speak? What is the language foreign people understand outside India? That is English and only English. That is the only way we can communicate with people outside India. Or we learn Spanish or we learn French. This we are talking of people abroad. What about our own country? If I want to go to South, if I go to Tamil Nadu, if I go to Kerala, if I go to maybe Assam or beyond Assam to Nagaland, Tripura, can I talk in Hindi? क्या मैं हिंदी में बात करूँ? Will they understand? No. Either I talk in the native language or I talk in English. So English is required everywhere in my own country also. Now there must be a lot of people among you जो students होंगे, जो exams की preparation कर रहे होंगे, UPSC exams या दूसरे competitive exams की. Don't you require English over there? आप अगर interview के लिए appear होते हैं, won't you require English over there to express yourselves? What about group discussion? What about the written test? Written test में एक subject जो है वो English का होता है, where you need to score minimum required marks. Maybe you need to pass English paper also. So English is required here also. What about in case you are interested for further research or further scientific studies? Over there also you will be required English, because there will be many words, there will be many subjects where English has to be there. You need to be aware of English. You need to express yourself in English. There will be words which are mandatorily only in English language. So English is required. So English is there for us and we can't avoid it. Fortunately or unfortunately, English is now a part and parcel of us and we have to accept that. Right? So the next is hurdles in learning spoken English. Sometimes we develop a complex or we have a myth that people who speak well in English, they are very very knowledgeable or they are very very intelligent. But ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता. We have so many examples. हर आदमी जो इंग्लिश अच्छी बोले तो वो knowledgeable हो या intelligent हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. In fact, we have come across many people in our own country जिनकी इंग्लिश में limitations है, but they are leaders in their own field. We all know it. So never keep a myth that a person who is good in English has to be very knowledgeable or is very impressive and we need to follow it, and we may not be able to speak that English because we are not so intelligent or knowledgeable. It's never like that. Okay? Remember one thing, see everybody, English is not our mother tongue. It's a foreign language. Just take an example. Supposing a foreigner comes to India and he speaks in our language. He talks in Hindi or Marathi or Tamil or any language with somebody. So grammatically he'll be doing a lot of mistakes. So do we make a fun of him? We don't. We understand that this language which he's speaking is not his mother tongue. Same way, when we talk in English and we make a lot of grammatical mistakes, तो उसमें हमें guilty feel करने की कोई बात नहीं है. इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, हम सीख जाएंगे धीरे धीरे. रिमेंबर वन थिंग,
एज लॉन्ग एज वी कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड द अदर पर्सन अंडरस्टैंड, उसको समझ आ रही है हमारी बात, तो कोई इशू नहीं है। चाहे वो हम इंग्लिश जो बोल रहे हैं वो ग्रामेटिकली सही बोले गलत बोले, दूसरे को समझ आ रही है, दैट इज अनफ। सी आई विल गिव यू एन एग्जांपल. Just try to remember your favorite stars, whoever they are, sports stars or anybody else. When they were new to that field, were they good in English at that time also? They may not have been good that time, but over a period of time they were continuously exposed to English and they practiced it, and over so many years now they are so very good in English. So it will happen with you also. So don't lose your heart. Then we also have a myth that, well, मैं तो एक कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा, मेरे को इंग्लिश नहीं आ सकती, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। वी हैव गॉट सो मेनी एग्जाम्पल्स, जो लोग कभी कॉन्वेंट स्कूल नहीं गए, जो इवन स्कूल भी ज़्यादा नहीं गए, जिनकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, बट टुडे दे आर सो वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। हाउ? सो ये जो मिथ है कि हम कॉन्वेंट स्कूल में जाके इंग्लिश अच्छी सीख सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसको आप अपने मन से निकाल दो। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि मेरे को अगर इंग्लिश सीखनी है तो मेरे को जो है वो कोई स्पोकन इंग्लिश की जो क्लासेस में ज्वाइन करना पड़ेगा, देन मेरे को वहाँ पे फ़ीस देनी पड़ेगी बहुत भारी, उसके बाद ही मैं सीख पाऊँगा। बट मैं आपको फिर अश्योर कर रहा हूँ, इट डजंट हैपन लाइक दैट। यू डोंट हैव टू गिव मनी इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। ऑल यू नीड इज़ द विल। इफ़ यू हैव द विल एंड इफ़ यू प्रैक्टिस, you will get success. So now the question that comes to mind is, how can we be good in speaking English? So we come to point number 1. It says, read daily newspaper or a magazine loudly. Develop the habit of reading English newspaper or a magazine or a book or a novel every day loudly. You must speak loudly for at least 15 to 20 minutes. आपके घर में कोई भी किताब पढ़ी हो, कोई मैगजीन पढ़ी हो, कुछ भी इंग्लिश का पढ़ा हो, उसको उठाएं और 15 से 20 मिनट ऊंचा ऊंचा पढ़ें, अपने कमरे में बैठ के या कहीं पे भी जहां आपको ठीक लगे। हो सकता है इनिशियली आप बहुत गलतियां करेंगे, आप कई वर्ड्स बोल भी नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल होगी, बट रिमेंबर, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको कुछ सीखना है तो। कंटिन्यू टू डू दैट ऑन डेली बेसिस विदाउट स्टॉप। अगर हो सके तो आप जो आप बोलते हैं उसको मोबाइल में रिकॉर्ड करें और उसको दोबारा से सुने और आप देखें आप कहाँ गलती कर रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको रीड करें दोबारा से ऊंचा ऊंचा, तो उस कोशिश करिए उस वर्ड को गलत नहीं बोलना, सही से प्रोनाउंस करना है। अगर प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल आती है तो आप डिक्शनरी खोलें अपनी, उस वर्ड को देखो और देखो उसको, वो डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन का जो है तरीका दिया होता है, वर्ड को ब्रेक किया होता है कि किस तरीके से एक वर्ड को बोलना है, तो वहाँ से देखें और फिर से रीड करें। इस तरह से आपको वर्ड से एक्वेंटेंस होगी और बोलने की आदत पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2 है, ऑलवेज कीप अ पॉकेट डिक्शनरी विद यू। व्हाट आई सजेस्ट यू इज, मेक डिक्शनरी योर बेस्ट फ्रेंड। Buy a pocket dictionary, especially English to English dictionary. Preferably if you could buy an Oxford dictionary, pocket dictionary. It's not very expensive, and keep it near your pillow. हर रात को सोने से पहले आप उस डिक्शनरी को खोलें, कोई भी पेज एट रैंडम खोलें और कहीं पे भी जहाँ आपकी नज़र जाए जिस वर्ड पे, उसको देखें, उसको पढ़ें, उसका मीनिंग देखें और उस मीनिंग को समझें और याद करने की कोशिश करें। और नेक्स्ट डे आप उस वर्ड को ड्यूरिंग योर डेली रूटीन कन्वर्सेशंस आप 3-4 बार उसको यूज़ करें। इससे क्या होगा, आपको रोज़ एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा। इस तरीके से साल में आप 365 वर्ड सीखेंगे। इवन अदरवाइज ऑल्सो, कभी भी खाली बैठे आपको कुछ भी करने को नहीं है, डिक्शनरी उठा लो, कोई भी पेज खोल लो और उसके वर्ड्स देखो कौन सा वर्ड है, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। हर वर्ड का डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन की हेल्प करने के लिए ब्रेकअप दिया होता है। आप उसको समझें और उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करें। आप जितना डिक्शनरी को पढ़ेंगे, उसके वर्ड को याद करके यूज़ करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। ठीक है, ट्राई टू मेक डिक्शनरी योर बेस्ट फ्रेंड। व्हेनेवर आप खाली हो उसको अपने पास रखें और उसको खोल लें। राइट? इसके बाद व्हाट आई वुड लाइक टू से इज, वॉच इंग्लिश प्रोग्राम्स ऑन टीवी। राइट? आपके घर में टीवी होगा,
आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम जो टीवी में देखते हैं इट शुड बी इन इंग्लिश चैनल्स, चाहे वो इंग्लिश का न्यूज़ हो इंडियन चैनल्स में, इंग्लिश का कोई मूवी हो, कोई इंग्लिश की स्टोरीज़ हो फॉर दैट मैटर, या जोग्राफिक नेशनल जोग्राफिक हो, डिस्कवरी चैनल, जो भी हो, ट्राई टू वॉच एज मेनी प्रोग्राम्स इन इंग्लिश एज यू कैन। इनिशियली आपको बहुत हिंड्रेंसेज आएंगे, देयर माइट बी टाइम आपको हो सकता है कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बट बिलीव मी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ ही दिनों में आपको काफ़ी कुछ समझ आने लगेगा। आपको समझ आएगा सेंटेंस कैसे बोलते हैं, आपको समझ आएगा कि कौन सा नया वर्ड है। जो वर्ड आपको समझ नहीं आता उसके डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखें। अगर हो सके तो जो सेंटेंस टीवी में उन्होंने बोला है उसको रिपीट करें, देखो आप किस तरीके से बोलते हो, इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होगा। अगर इस तरीके से डेली कम से कम आधा घंटा आप करते हैं तो आप देखिएगा आपको बहुत कुछ इंग्लिश में सीखने को मिलेगा। राइट, ऑल यू नीड इज पेशेंस। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश। टेक एनीबडी फ्रॉम योर फैमिली, मे बी योर मॉम और योर ब्रदर और योर फ्रेंड or your sister, wherever you are comfortable, make it a point that whenever you will speak to that person, वो आप सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे। और उसमें जो है चाहे कितनी भी गलत इंग्लिश बोलें, चाहे कितनी भी लड़खड़ा के बोलें, आप सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे उस इंसान के साथ। आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल ओवरकम योर हेजिटेशन एंड यू विल गेन योर कॉन्फिडेंस। इफ़ यू कंटिन्यू टू डू दैट, आप देखिए विथ प्रैक्टिस देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन योर स्पीकिंग इंग्लिश। अदरवाइज ऑल्सो जब आप बाहर निकलते हैं, अपने घर से बाहर जाते हैं, आप रूटीन में बाकी लोगों से बात करते हैं, तो ट्राई करें जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड अपनी रूटीन जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें यूज़ करने की। इससे आपको दूसरे वर्ड्स को भी बोलने की प्रैक्टिस होगी। आप इस तरीके से अगर कुछ हफ्ते कुछ महीने प्रैक्टिस करेंगे, यू वोंट इमेजिन आप में कितने मराकुलस चेंजेस होंगे और आपका कॉन्फिडेंस कहाँ बढ़ेगा। इन दी एंड व्हाट आई वुड लाइक टू से इज, देखिए हम जिस भी फैमिली में बॉर्न हुए हमारी एक नेटिव लैंग्वेज है। व्हेन वी वर बॉर्न, जब हम 5 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के थे, क्या हम उस समय मदर और पापा की जो लैंग्वेज है उसमें बात कर पाते थे? हमें तो वो जो बात करते थे वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। धीरे धीरे हमने वो वर्ड को कैच करना सीखा अपने मम्मी पापा से, फिर उन वर्ड्स का हमने सेंटेंस बनाना सीखा, और जब तक 3-4 साल के हुए तब जाके हमें थोड़ी फ्लुएंसी आई अपनी नेटिव लैंग्वेज में। बिकॉज वी प्रैक्टिस दैट, वी लर्न वर्ड बाय वर्ड। उसी तरीके से जो वेल अकम्प्लिश्ड स्पोर्ट्स पीपल हैं, आपको लगता है वो डे 1 से दे वर एक्सपर्ट्स इन दैट फील्ड? नो, हो सकता है उनको डे 1 तो बैट उठाना भी नहीं आता था, उनको बॉल पकड़नी भी नहीं आती थी, बट दे नेवर लॉस्ट देयर हार्ट। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं आज बैट ठीक नहीं पकड़, लोग हंसेंगे, मैं क्लीन बोल्ड हो जाऊंगा, लोग हंसेंगे। दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस विदाउट थिंकिंग व्हाट द अदर पीपल आर थिंकिंग अबाउट देम। उन्होंने बिना सोचे कि लोग क्या कह रहे हैं हमेशा प्रैक्टिस की, कभी पेशेंस नहीं लूज़ की, और कभी ये गिल्ट नहीं आया कि मेरे को नहीं आता खेलना। और विथ प्रैक्टिस ओवर ईयर्स दे हैव बिकम एक्सपर्ट्स इन दैट फील्ड। उसी तरीके से अगर हम पेशेंस नहीं लूज़ करते एंड वी कंटिन्यू टू प्रैक्टिस, विल रियली लर्न इंग्लिश वेरी वेल। आई अश्योर यू दैट। कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट हेजिटेट। आई विश यू ऑल द लक। थैंक यू।